Hello students, good morning. Today we will learn about perfect continuous tenses. I have taught you 9 tenses just before the starting of this tense, and I think you have learned a lot from those videos. Simple tenses and then continuous and perfect tenses. Friends, similarly we have to go towards last 3 tenses. Those are the parts of perfect continuous tenses. Please come with the notes which I have prepared for you in this crucial lockdown period. Please come with me. Perfect continuous in the fill in the blanks. Friends, first of all I have to tell you how to prepare perfect continuous tense. Last time I have told you when I began to teach you tenses. Now I will tell you once again, perfect and continuous are blended with two important tenses, perfect and continuous. Perfect requires has, have, had or will have, shall have plus V3, and continuous require be plus be first ing. But when we merge them into single tense, then they become like this. You have seen here have and been types, have and been helping verb types. So has, have means has, have, it's the main member of have family. Has, have, had, will have, shall have. Been is the blended of be plus en. Be means continuous and en means V3. जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो क्या बन गया, थर्ड फॉर्म बन गई और ये परफेक्ट बन गया. और परफेक्ट में हैज, हैव, हैड आते ही हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा क्या बन गया, परफेक्ट बन गया. और साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन गया, कंटिन्यूस बन गया. और कंटिन्यूस का मिक्स भाग बी पहले से चला गया, तो आप देख सकते हैं बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईएन यानी थर्ड फॉर्म हुआ, तो ये परफेक्ट कहलाया. और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या कहलाया, कंटिन्यूस. तो हो गया ना मिलकर सारा परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस. इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है. और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैव बीन की तो हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. फ्रेंड्स, हैव बीन is used as helping verbs in perfect continuous, and we first ing I meant to say present participle is used as main verb in perfect continuous tense. So whenever we come towards present perfect continuous, look here, it's very easy to understand. Present, here past, and here future perfect continuous. The similar things which you face here, which you look here, which you observe here is that we first ing you can find here also, and we been also here in this tense as a helping verb. In past perfect continuous we first ing and been is also there, and in future perfect continuous we first ing and been is also there. So you can understand, you can assume that there must be the same rules to fill we first ing and been in all these three tenses. मित्रों, इन तीनों टेंस के अंदर एक समानता है, बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी. अब देख सकते हो यहाँ पर भी देखिए बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी, और आप इसमें भी देख सकते हैं बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी. इसका मतलब आप ये डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं कि बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को भरने के लिए तीनों में एक ही समान रूल्स होगा. मित्रों, यहाँ से लुक हियर, इफ यू फाइंड सिंस और फॉर और ऑल प्लस टाइम, सिंस प्लस फॉर, सिंस और फॉर or all plus time if you find in a sentence, whether it might be present perfect continuous, whether it might be past perfect continuous, or whether it might be
future perfect continuous. If you find out their since or for or all plus time, then you have to fill V first ing or present participle in all these three tenses. V first ing. If you fill V first ing, then you can fill been also there easily. All the tenses are filled from front to back, but these tenses are filled from back to front. First you have to find out whether there are since or for or all in the sentence or not. अगर वाक्य में कहीं पर भी since या for या all के साथ टाइम लिखा है तो मित्रों आपको fill in the blanks में पीछे से सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भर देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भरते ही बीन का प्रयोग कर देना है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनका ing बनता नहीं है, जैसे कंप्लीट तो कंप्लीटेड ही होगा, सी है तो सीन ही होगा, फिनिश है तो फिनिश्ड ही होगा। ऐसी कुछ वर्ब्स आती है तो उनमें ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का प्रयोग नहीं करके केवल थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें और उनसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। जब मैंने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तब ये बात बताई थी। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। So friend, if there you find some since, for or all plus time, then you have to fill first ing and you have to fill been also. अब यहाँ पर बात ये रहती है कि हैज हैव कब भरे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो हैड कब भरे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है तो विल हैव शेल हैव कब भरे। तो मित्रों बहुत ही सरल बात है। आपने जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भर दी, कैसे भरी बताएं आप, बताएं। ओके, आप भी मजबूर, मैं भी मजबूर ना, आप बोल सकते हैं, मुझे केवल सुनाना है आपको सुनना है और वापस सुने। अगर वाक्य में सिंस या फोर या ऑल प्लस टाइम दे रखा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing पहले भर दें, साथ में बीन भर दें। अब हमें हैज बीन या हैव बीन कैसे भरना है, हैज और हैव कैसे भरना है, तो यहाँ देखो उस वाक्य में आप सर्च करना, उस वाक्य में कहीं पर भी इनमें से कुछ न कुछ लिखा हुआ जरूर होगा। देखना उस वाक्य में और कहीं पे देखना या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये सो जैसे गोज, कम्स, डज ऐसा लिखा होगा, या डू लिखा होगा, या डज लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या इज लिखा होगा, एम लिखा होगा, आर लिखा होगा, या वहां कहीं पर भी देखना पहले से हैज लिखा होगा, पहले से हैव लिखा होगा, पहले से कैन या मे लिखा हुआ है, या मस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। मित्रों याद रखें, अगर इनमें से कुछ भी एक भी शब्द, एक भी वर्ब वहां लिखी हुई है तब आप सीधे उस खाली स्थान में आपको या तो हैज भरना है या हैव भरना है। और आपको बता दिया जिस वर्ब के साथ एस लगता है उसके पहले हमेशा सब्जेक्ट एक वचन का आता है। ही हैज, शी हैज, इट हैज, रमेश हैज, मोहन हैज, मनीषा हैज, इस तरह से आपको हैज का प्रयोग करना है। और जिस सब्जेक्ट में आई का मतलब आई का रूल्स हमेशा अलग होता है। हम हिंदी में आई यानी क्या कहते हैं, माँ को कहते हैं ना, तो आई की तुलना किसी से नहीं हो सकती, इसलिए आई के रूल्स हमेशा अलग ही चलते हैं। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, पीपल हैव, तो उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब, जब उस वाक्य में कहीं पर भी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस दी हो, डू दे रखा हो, डस दे रखा हो, या इज एम आर दे रखा हो, हैज हैव दे रखा, हैज या हैव दे रखा हो, कैन में दे रखा हो। और मित्रों एक बात और ध्यान रखें, अगर इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई दूसरा टेंस भी नहीं दिया हो, या तो दिया हो तो प्रेजेंट टेंस दिया हो, या प्रेजेंट टेंस के अलावा और भी कोई दूसरा टेंस बिल्कुल भी नहीं दिया हो, तब भी आप वाक्य में क्या भरेंगे, हैज या हैव भरेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल्स पर ले जाऊंगा, नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप बताऊंगा। अब आपको मैं ले जाता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। मित्रों आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भरने का रूल्स तो तीनों टेंस में सेम हो गया। अगर वाक्य में सिंस है, फोर है, ऑल है और इसके साथ टाइम याद रखना, समय, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग हियर दैट टाइम मस्ट बी देयर विद वी फर्स्ट ing। अगर टाइम दे रखा, कई बार कई बच्चे बड़े परेशान होते हैं, जैसे लिखा होता है सिंस लास्ट मंडे, तो बच्चे लास्ट को देख करके सेकेंड फॉर्म भर के आ जाते हैं। मित्रों एक बात याद रखें, अगर सिंस, फॉर या ऑल के बाद कुछ भी टाइम लिखा हो, चाहे उसमें लास्ट भी लिखा हो, तब भी आपको एक ही याद रखना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भरनी है और बीन का प्रयोग कर देना है। अब आती बात कि जब आपने यहाँ तक तो भर दिया,
तो आपके दिमाग में आता है कि हेड कैसे भरे, तो हेड तभी भर सकते हो जब वाक्य में ये होने चाहिए। इनको ढूंढो, देख लो वाक्य में कहीं पर सीधी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। सीधी सेकंड फॉर्म का मतलब जिसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जैसे आस्क्ड, कॉल्ड, इस तरह से वर्ब होनी चाहिए। या डिड होना चाहिए सीधा, या वॉज होना चाहिए, या वर होना चाहिए, या हेड होना चाहिए, कुड होना चाहिए, वुड होना चाहिए, यूज्ड टू होना चाहिए। यानी पास्ट टेंस को बताने वाली कोई भी वर्ब दे रखी है, अगर उस वाक्य में इनको भरने के बाद, पहले इनको भरना याद रखें, तो ये दे रखे हैं, तो फिर आप सीधा उस खाली स्थान में हेड भर देंगे और पूरा वाक्य आप भर देंगे हेड बीन वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, और ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? चले मित्रों आगे चलते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मित्रों कुछ बात तो बिल्कुल सेम है जो पहले बता दी। अगर वाक्य में सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइप दे रखा, इफ देयर इज गिवन either since or for or all plus time, then and with time, then you have to fill only v first ing, then you have to fill been from back to front, go from back to front. First you have to fill v first ing, then been. Now we will have a question, how can we fill will have or shall have? तो will have और shall have को बनने के लिए there must be some clues in that sentence. If there is written by plus time or when plus subject plus verb we first, अगर वाक्य में by plus time भी लिखा है और when plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, ऐसा दे रखा है, तो आप उस खाली स्थान में पहले will have shall have कर दें और been और ing तो इसको देख के भरेंगे। तो पहले आप ing किसको देख के भरेंगे, since for all plus time को, been ing आएगी तो बीन ऑटोमेटिक आ जाएगा। विल हैव शैल हैव किसको देख के भरेंगे उस वाक्य में, और कहीं पर भी देखना बाई प्लस टाइम लिखा हो या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। तो भरने का कितना सरल तरीका है। हम कितनी गलतियां करते हैं भरते वक्त, हम कई सारे एज्यूम लगाते हैं। नहीं मित्रों, बहुत सिंपल है। आओ मित्रों अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी पहचान क्या होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी वाक्य बनेगा उसमें से रहा है, से रही है, से रहे, ये से किसका अर्थ होता है, सिंस, फॉर और ऑल का अगर एक अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ से होता है, याद रखना। अगर वाक्य में सिंस फॉर ऑल लिखे इसका अर्थ से बनता है, तो से रहा है, से रही है, से रहे, इसका मतलब आपको समय फिक्स करना जरूरी होता है, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो। अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे तो उसमें चेंज क्या हो जाएगा, था थे थी हो जाएगा, से रहा था, से रही थी और से रहे थे हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना चाहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना चाहेंगे तो उसमें से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, है। तो आप जब होगा तो वाक्य बनाते सब विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यूजेस, टेंस के यूजेस कैसे होते हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि इसमें यूजेस के रूप में मैं आपको बता दूं कि विद प्रेजेंट टेंस के, अगर प्रेजेंट टेंस दे रखा कहीं पर भी और विशेष रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक भर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते कोई इंक्वायरी वगैरह पूछनी हो, कब से रह रहे हो यहाँ पर, कितने जने रह रहे हो, कौन कौन कब से कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो सारी इंक्वायरी के दरमियान इस टेंस का प्रयोग आप बोलते वक्त कर सकते हैं। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भर सकते हैं या उसमें पास्ट टेंस का कोई क्लू दे रखा हो या पास्ट परफेक्ट का क्लू दे रखा हो और आपको कोई रिमाइंडिंग पास्ट मेमोरी याद करवानी हो, हम वहाँ पर इतने समय से रह रहे थे, ऐसी कोई बातें हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंक्वायरी लेनी हो तब भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का व्हेन देयर इज कोई फिक्स्ड सिस्टम हो फॉर डीपर फ्यूचर के लिए, बहुत गहरे फ्यूचर के लिए हो, आप कोई बात फिक्स हो चुकी है कि मैं अगले साल इतने वर्षों से वहाँ रह रहा हूँ अभी तक, तो क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले आप कहीं जा सकते नहीं हो, तब आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। मित्रों इन टेंसेस को समझाने के पश्चात मैं अब आपको इनके कुछ एग्जाम्पल्स पर ले जाना चाहूँगा और एग्जाम्पल्स को आपको भली भांति समझना होगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल्स की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, आप देख सकते हैं सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उमेश्वरी डैश 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 लिव इन उदयपुर सिंस 2008। सबसे पहले देखिए मैंने सिंस के नीचे क्या किया, लाइन की है, सिंस के नीचे लाइन की है, सिंस के बाद टाइम 2008 क्या है, समय है।
सिंस एंड 8 है तो आपको सीधा लीव है, लीव का लिविंग हो सकता है। कभी वर्ब को भी ध्यान रखना है, ये ना कंप्लीट का कंप्लीटिंग कर दो या फिनिश का फिनिशिंग कर दो या सी का सिंग करके आ जाओ। आपको वर्ब को भी देखना होगा। लीव का यहाँ पर क्या भर देंगे, लीव का आप यहाँ पर भरेंगे लिविंग। अब लिविंग आ रहा है तो आप उसके पहले बीन भी भर सकते हैं, बीन भी भर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर मैं हैव भरूँ, हेड भरूँ या विल हैव शैल हैव। तो मित्रों मैंने एक बात आपको ये नियम में बताई थी, या तो कोई भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए या कोई दूसरा टेंस नहीं हो तो कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें उमेश्वरी तो सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं इन उदयपुर जगह दे रखी है और सीन्स को देखकर तो आपने केवल क्या भरा, आईएनजी फॉर्म भरी। तो लिविंग भर दी, बीन भर दी, कोई दूसरा टेंस नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं। उमेश्वरी हैज बीन लिविंग, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, इस वाक्य में आपको बिल्कुल सीधा भरना होगा उमेश्वरी, यहाँ पर आपको भरना होगा उमेश्वरी हैज बीन लिविंग बनना होगा। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको अभी बताया था, अगर वाक्य मैंने क्या देखा, सिंस के साथ टाइम देखा, इसलिए इसको देखकर मैंने लीव का क्या भरा, लिविंग भरा। लिविंग आ रहा है तो बीन भी आ जाएगा। अब हैज क्यों भरा, क्योंकि हैज इसलिए भरा कि इस वाक्य में कहीं पर भी कोई दूसरा टेंस नहीं दे रखा है। दूसरा वाक्य आइए, आई एम टायर्ड एज आई वर्क फॉर 10 आवर्स। सबसे पहले आप देखो, नजर डालिए, 4 दे रखा है, 4 के बाद 10 आवर्स समय है कि नहीं, समय है, बिल्कुल दोनों मिल रहा है। इसका मतलब वर्क का आईएनजी बन सकता है। तो वर्क का आप यहाँ पर पहले क्या भर देंगे, यहाँ पर आप वर्क का भर देंगे, वर्किंग भर देंगे। वर्क क्या होता है, वर्किंग। अगर आपका नियमानुसार वर्किंग आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे, बीन भर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या भरे। तो अब मैंने कहा था वाक्य में कहीं कोई भी एक दूसरा एक्स्ट्रा क्लू देखना है, पहचान देखनी है। देखो एम दे रखा है, एम किसको बताता है, प्रेजेंट टेंस को बताता है। एम किसको बताता है, एम आप देख सकते हैं किसको बताता है, प्रेजेंट टेंस को बताता है। एम जब प्रेजेंट टेंस को बताता है, इसका मतलब बात तो प्रेजेंट की होगी, तो प्रेजेंट की होगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनना है आपको, हैज या हैव बनना है। तो आई के साथ क्या भरेंगे, हम हैव भरेंगे। आई हैव बीन वर्किंग, आई एम बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। बात समझ में आ गई। तीसरी बात देखो, रचना डैश 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 यहाँ दे रखा है, स्टडी इन एमबी कॉलेज सिंस लास्ट ईयर। अब आप देख सकते हो सिंस दे रखा, सिंस के बाद लास्ट भले लिखो, आपको कोई लेना देना नहीं। सिंस के बाद केवल टाइम क्या दे रखा, लास्ट ईयर दे रखा है, इसलिए सिंस को देखा तो स्टडी का आप क्या भर देंगे, यहाँ पर स्टडी का आप भर दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर भर दीजिए स्टडाइंग। जब आपका आईएनजी आ रहा है नियमानुसार तो आप बीन साथ में बजा दीजिए, साथ में पुंगी बजा दीजिए आपकी बीन की, बीन स्टडाइंग हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर क्या भरे। तो यहाँ देखने के लिए आपको वापस कोई क्लू देखना होगा। रचना दे रखा है, ये एमबी को दे रखा है। सिंस के बाद लास्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या था, टाइम को बताता है। सिंस लास्ट ईयर से तो हमने क्या भरा, स्टडाइंग भरा और बीन भी भर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दूसरा टेंस नहीं दे रखा है, तब भी आपको पहले वाला टेंस ही भरना होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना होगा। रचना हैज बीन स्टडाइंग, रचना हैज बीन स्टडाइंग इन एमबी कॉलेज सिंस लास्ट ईयर। मित्रों अगला वाक्य देखो, शी डैश डैश राइट ए लेटर सिंस यस्टरडे। अब आप देख सकते हैं सिंस के साथ यस्टरडे, यानी सिंस के बाद क्या टाइम दे रखा है। आपको यस्टरडे दे के सेकंड फॉर्म नहीं भर देनी, क्यों, क्योंकि ये सिंस के बाद आया इसलिए। अगर सिंस नहीं आया होता तो सेकंड फॉर्म भरते आप, लेकिन सिंस आ गया तो इसको समय ही मानना है। सिंस के साथ यस्टरडे दे रखा है तो आपको राइट का क्या भर देना है मित्रों, आपको राइट का भर देना है, आपको राइटिंग भर देना है। जब आईएनजी आ रहा है तो आपका बीन भी आ जाएगा यहाँ पर। अब बात आती है कि यहाँ खाली स्थान में हेल्पिंग वर्ब क्या भरे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने देखा है, बट सी कंप्लीटेड डायरेक्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सीधी सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस होता है, सीधी सेकंड फॉर्म का मतलब होता है सीधी सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब पास्ट टेंस हुआ। तो पास्ट टेंस हुआ, इसका मतलब आपको पास्ट टेंस दे रखा है, इसका आपको क्या बनना है, इसमें हेड का प्रयोग करना है इसमें। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर हम हेड भर देंगे। क्या भरेंगे, इसमें हेड भरेंगे, तो हेड बीन राइटिंग हो गया। अगला वाक्य आप देख सकते हैं, आई वॉज टायर्ड एज आई डैश 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 डू माई होमवर्क सिंस लास्ट नाइट। आप सबसे पहले देखो सिंस दे रखा है, लास्ट नाइट दे रखा है, इसका मतलब समय दे रखा है। अब डू का डूइंग हो सकता है, तो डू का आप भर दीजिए, यहाँ पर डूइंग भर दें। अगर आईएनजी आ रहा है तो आपका पिन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या भरें, तो आप देखो यहाँ वॉज दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर मित्रों, वॉज कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट टेंस बताता है। जब पास्ट टेंस बताएगा तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, हेड का प्रयोग करना है। तो आ जाएगा हेड बीन डूइंग हो जाएगा, हेड बीन डूइंग। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, देखो यहाँ पर दे रखा वॉज दे रखा है,
वॉज दे रखा है तो आपको क्या बनना है, हेड बनना है। तो पूरा वाक्य बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये। आई वॉज टायर्ड एज आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस लास्ट नाइट। अंतिम वाक्य आप देखें, बाई प्लस 2021। आपको बाई प्लस अगर आने वाला समय दे रखा हो, अगर गया समय हो तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे जाना पड़ेगा आपको, लेकिन आने वाला समय दे रखा बाई 2021 आया नहीं है अभी तक। और तनु डे सर्व इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो यहाँ 4 के साथ क्या का टाइम, सबसे पहले देखो 4 प्लस टाइम है, 4 प्लस टाइम है तो सर्व का क्या हो जाएगा, सर्विंग हो जाएगा। सर्व का हो जाएगा आपका सर्विंग हो जाएगा। सर्विंग हो रहा है, आप बीन भी भर दीजिए। और बाई प्लस टाइम भी अब मैं आपको बताया था यहाँ पर दे रखा, देखो बाई प्लस टाइम दे रखा था, बाई प्लस टाइम दे रखा है, तो बाई प्लस आने वाला टाइम दे रखा है। इसका मतलब आपको कौन सा टेंस बनना होगा, बाई प्लस टाइम, तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना होगा। तनु है तो तनु के नाम के बाद किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। तो ये पूरा वाक्य बन गया, तनु विल हैव बीन सर्विंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। कितना इजीली, कितना सीधे ढंग से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर सकते हैं। आपने देखा परीक्षा में बहुत सारी गलतियां इस टेंस में ही करते हैं और अधिकतर इसी टेंस के ही वाक्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि आपने इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे भरे जाते हैं और उनके क्या क्या क्लूज होते हैं। यू नो, इफ यू वांट टू फिल these tenses properly, then you have to go from back to front. You have to first of all find out whether there is since or for or all plus time in this sentence or not. If you succeed to find out since or for or all plus time in the sentence, then you can fill easily V first ing. If you are able to fill V first ing, then you have to fill been also. Then you have to find out, you have to search another clue that would be related to present tense or past tense or by plus coming time. If these are the clues are there, then you can fill the particular tense, whether you have to fill has have or had or will have or shall have. This is the very nice and very important clue you learn from my video.